Good morning. All the students join the class. Quick fast. Lecture will be started very shortly. Okay. Lecture will be started. So I will share the screen. Okay. Last class we have to study about the sequential circuit, and the first one element for the sequential circuit is the flip flop. Okay. Previous class को थोड़ा सा recall करते हैं. In case of combinational circuit, it is not depend upon the previous value. That means it will not consist any type of memory element. But in case of sequential circuit, it will consist the memory element. And in case of memory element, the flip flop is a basic element with respect to memory element in sequential circuit. And the flip flop is a 1-bit memory element. Okay, flip flop is a 1-bit memory element, and it is a age triggered element. It may be positive age triggered or negative age triggered. After that, we have to study about the types of flip flop. There are the 5 types of flip flop: SR flip flop, D flip flop, JK flip flop, T flip flop, and master slave JK flip flop. Okay. There are the 2 categories of flip flop: asynchronous flip flop, synchronous flip flop. In case of asynchronous flip flop, clock pulse is not applied or not applicable. But in case of synchronous flip flop, clock pulse will be applicable. Okay. So let us start the first one, analysis of the flip flop. That first one is the SR flip flop, which is known as the set reset flip flop. In previous class, we have to study about the working of SR flip flop, where we consider it is depend upon the bistable multivibrator, or it is working as a bistable multivibrator. So we have to study about the working of the bistable multivibrator, where consider the 2 transistor 1 and the transistor 2, where the transistor output transistor second one output transistor is connected to first one input, and first one output transistor output will be connected to second one input. Okay, so basically it is in the twisted form, multi vibrator. That means creating the multiple vibration, that means the square waveform. Okay. And in case of multi vibrator, we have to consider the different cases. 4 cases are considered. When we consider that the transistor 1 input is connected to set terminal, transistor 2 input is connected to reset terminal. The case first we consider when the set equals to 1, reset terminal equals to 0. That is known as the set state, where the q equals to 0 and q bar equals to 1 and q bar equals to 0. Okay. Second one case, when the set terminal is 0 and reset terminal is 1, that is known as the reset condition, where the q bar is 1 and q equals to 0. अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि जब सेट स्टेट रहेगी उसमें q 1 रहेगा, रीसेट कंडीशन रहेगी उस केस में q बार 1 रहेगा. इज इट क्लियर? Case third, when s equals to 0, r equals to 0, that is known as the inactive condition or the no change condition. इस केस में जो प्रीवियस स्टेज थी वही नेक्स्ट स्टेज एप्लीकेबल रहेगी, स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा. And when s equals to 1 and r equals to 1, that is known as the race around condition. That means the दोनों पे अगर सेट पे 1 रीसेट पे 1 दे देंगे तो both are trying to get the
on state or logic 1 state. So that is known as the basic race around condition between the set terminal and the reset terminal, or the transistor 1 and the transistor 2. Okay. अब ये वाली जो अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी करी थी कि दैट इज द एनालिसिस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. टुडे वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग द लॉजिक गेट्स, है ना. लॉजिक गेट के रेस्पेक्टिव एसआर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को अपन स्टडी करेंगे. तो इसमें सबसे पहले जो लॉजिक गेट अपन ने एनालिसिस में लिया है वो कौन सा है? नॉर गेट. दैट इज द नॉर गेट. अब इसके लॉजिक डायग्राम में देखें कि रीसेट टर्मिनल है, दूसरा सेट टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल सेट और रीसेट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल क्यू और क्यू बार टर्मिनल है. ठीक है. ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज क्या है कि नॉर गेट फर्स्ट का आउटपुट नॉर गेट सेकंड के इनपुट में जा रहा है. ठीक है. और नॉर गेट सेकंड का आउटपुट नॉर गेट फर्स्ट के इनपुट में जा रहा है. ठीक है ना. तो ये बेसिकली किस फॉर्म में? ट्विस्टेड फॉर्म में. जैसे अपन उस ट्रांजिस्टर को ट्विस्टेड फॉर्म में ले रहे थे, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट में. सिमिलर वे में फर्स्ट का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट फर्स्ट के इनपुट में. ठीक है. ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए. ये अपने को रिमेंबर रहना चाहिए. ओके. अब इसके ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव इसको एनालिसिस करें कि व्हेन सेट टर्मिनल 0 रीसेट टर्मिनल 0 है, जैसे सिमिलर केस थर्ड अपन कंसीडर कर रहे थे, तो कौन सा कंडीशन रहेगी? नॉट चेंज कंडीशन. ठीक है. तो सेट टर्मिनल है, रीसेट टर्मिनल है, Qn+1 है और Qn+1 का बार है. Qn+1 का मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टेट. Qn का मतलब क्या रहेगा? प्रीवियस स्टेट, है ना. सो नेक्स्ट स्टेट विल बी डिसाइडेड अपॉन द प्रीवियस स्टेट. ठीक है. So when S और R दोनों पे अगर 0 है, that means it is known as the inactive condition or the no change condition. अब दूसरा केस में अपन ने क्या लिया? रीसेट को 1 करा, सेट को 0 ही रखा, रीसेट को 1 करके हाई करा या एक्टिव करा. उस केस में क्या है? Qn बार है वो एक्टिव होगा, है ना. तो Qn बार पे तो क्या गया? 1 और Qn पे क्या रहा? 0. रीसेट कंडीशन. थर्ड वाली कंडीशन कौन सी है? जिसमें सेट को एक्टिव करा, S को 1 दिया, रीसेट को 0 करा. तो 1, ये इस केस में क्या आएगा? Qn एक्टिव रहेगा और Qn बार क्या रहेगा? 0. तो Qn पर आएगा 1, Qn बार पे क्या आएगा? 0. सेट स्टेट. सिमिलर कौन सी स्टेट थी? ये फर्स्ट स्टेट. प्रीवियस केस में अपन कौन सी देख रहे थे? ये फर्स्ट स्टेट थी. तो दैट थर्ड वाली जो रो है वो किससे रिलेवेंट है? फर्स्ट स्टेट से. केस फर्स्ट है. ओके. लास्ट वन क्या है? 1 एक्चुअली किससे रिलेवेंट है? केस 4 से. ये केस 4 कौन सा है? इनडिटरमिनेट कंडीशन और रेस अराउंड कंडीशन, है ना. इनडिटरमिनेट कंडीशन और रेस अराउंड. इनडिटरमिनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि वो 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है. वो 1 0 1 0 कंटिन्यूअस क्या है? चेंज होता रहेगा. वो 1 होगा 0 होगा, 1 होगा 0 होगा. तो वो क्या कौन सी कंडीशन है? इनडिटरमिनेट कंडीशन और नॉट डिफाइंड कंडीशन और नॉट रेस अराउंड कंडीशन. अब इसके एक एक स्टेप्स को अपन समझते हैं. तो नॉर गेट, नॉर जो लॉजिक गेट है उसके अपन ट्रुथ टेबल या उसकी वर्किंग को सबसे पहले यहाँ देख लें. तो नॉर गेट में क्या रहेगा? 0 0 पे 1 है, 0 1 पे 0 है, 1 0 पे 0 है, 1 1 पे 0 है. मतलब नॉर गेट का कंक्लूजन क्या निकला कि जब दोनों इनपुट 0 0 उस केस में हाई 1 आएगा. इज इट क्लियर? उसी केस में 1 आ सकता है. तो इस केस में जब अपन फर्स्ट जो ट्रुथ टेबल का फर्स्ट स्टेट लें जिसमें S भी 0 है, R पे भी 0 है, S और R दोनों पे 0 अपन ले कंडीशन, तो उस केस में क्या होगा? S equals to 0, R equals to 0, Qn equals to 0, Qn bar equals to 1, output 1, that is Qn bar, and Qn bar equals, then output Qn plus 1 equals to 0, और S equals to R equals to 0 if previous stage Qn equals to 1, then NOR. इसको आप ऐसे समझो कि S और R दोनों पे अपन ने 0 दे रखा है. ठीक है. प्रीवियसली अपन ने अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रीवियस स्टेट में Q पे क्या था? 0 था. समझना इसको. जैसे अज्यूम करके चल रहा हूं मैं, Qn जो इसका प्रीवियस स्टेट था वो यहाँ 0 था. तो ये 0 इधर आया इसके पास. S ऑलरेडी 0 था, तो 0 0 का इसने क्या बनाया? 1. ये 1 जाके कहाँ गया? इसके पास. 1 और 0 का क्या बना? 0. तो एज इट इज रहा. Qn+1 भी क्या आया? 0 ही आया. ठीक है. इज इट क्लियर? बाय द वे Qn अपन ने जैसे 1 लिया,
Qn 1 लिया तो 1 और 0 का क्या हुआ, जैसे 1 ये इधर आया इसके पास, ये S0 है तो 1 0 का क्या बना 0, ये 0 इधर गया तो 0 0 का क्या बन गया 1, तो नेक्स्ट स्टेज भी क्या रही 1 ही रही है। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स अपन इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, Q और Qn बार को 0 1 रख के देखो तो नेक्स्ट स्टेज भी क्या आएगी जो प्रीवियस स्टेज थी। क्लियर हुई? अब दूसरा केस लिया जिसमें अपन ने क्या सेट को 0 करा, रीसेट को 1 रखा। समझना एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सेट को 0 रखा अपन ने और रीसेट पर रख दिया 1। ओके, सेट 0 रीसेट 1। अब अपन यहाँ पे Qn की वैल्यू जैसे अपन रखे हैं, Qn की वैल्यू रखी अपन ने 0, ठीक है, Qn की वैल्यू 0 रखी तो 0 और ये S पे क्या था 0, तो 0 0 का क्या बना 1, ये 1 ये ऊपर गया, 1 और R पे क्या था 1 1 1 का क्या बन गया 0, ठीक है, तो ये क्या Qn क्या आया 0, तो ये 0 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेज में क्या बना, ये 0 बन गया और Qn बार क्या रहेगा 1, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये 0 है तो ये 1 रहेगा, ये 1 है तो ये 0 रहेगा। इज इट क्लियर? अब एक और अपन एग्जांपल लेके देखें, 1 और 0 वाला केस लें जिसमें सेट को अपन 1 कर रहे हैं, रीसेट को 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो Qn जैसे अपन ने लिया, Qn लिया जैसे 1, तो 1 1 का क्या बना 0 0 इधर गया, सेट और 0 0 का क्या बन गया 1, तो Qn पे क्या आ गया नेक्स्ट स्टेज में 1 आ गया, तो ये 1 आ गया यहाँ पे Qn बार 1, ये 1 है तो ये एक्चुअली क्या है 0, 1 1 का क्या 0, तो यहाँ क्या आएगा 0, सो दैट मींस द 0। Qn बार क्या आएगा, बार वाली स्टेट में क्या आएगा 0 आएगा। 1 0 जब हम दोनों पे 1 1 लेंगे तो यहाँ आप कोई भी कंडीशन रखो तो वो साइमल्टेनियसली चेंज होता रहेगा, ये 1 बनेगा फिर 0 बनेगा, 1 बनेगा फिर 0 बनेगा, नेक्स्ट स्टेज फिर जैसे 0 है प्रीवियस स्टेट तो नेक्स्ट स्टेज 1 आएगी, फिर नेक्स्ट स्टेज 0 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेज 1 आ जाएगी, तो 1 0 1 0 के फॉर्मेशन में ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा। उस केस में इसको अपन क्या कहेंगे इनडिटरमिनेट कंडीशन और द रेस अराउंड कंडीशन। ये सारी मैंने डिटेल यहाँ इस वाली पीपीटी में डिफाइन कर रखी है, ठीक है। जैसे इसमें लें अपन इसको और समझें, जैसे S इक्वल टू 0 Qn इक्वल टू 0 तो आउटपुट क्या बनाएगा 0 0 पे आउटपुट क्या बनाएगा, ये 1 एक्चुअली कहाँ गया सेकंड वाले टर्मिनल पे, जैसे ये 1 गया तो 1 इधर क्या गया इधर आया, तो 1 के रेस्पेक्टिव ये क्या बनेगा 0। सो R इक्वल टू 0 Qn बार इक्वल टू 1, देन आउटपुट Qn इक्वल टू Qn प्लस 1 क्या आएगा 0 आएगा, तो नोड चेंज कंडीशन आ जाएगी। सिमिलर S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0, जैसे S इक्वल टू 0 करा और Qn इक्वल टू 1 ले लिया तो आउटपुट क्या आया 0, ये 0 फिर किसके साथ गया रीसेट टर्मिनल के साथ गया, रीसेट टर्मिनल के साथ बाद आउटपुट क्या बना दिया इसने 0। नेक्स्ट स्टेज में 0 0 का लिया तो क्या बनेगा 1, तो 0 0 का लिया तो नेक्स्ट में 1 आ गया, तो एज इट इज Qn पे क्या रहा 1 1 आ रहा, Qn बार पे क्या रहेगा 0 रहेगा। नेक्स्ट S इक्वल टू 0 रीसेट इक्वल टू 0, उस केस में क्या आएगा Qn बार 1 रहेगा, Qn क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 0, सिमिलर अपन ने ऑब्जर्वेशन कर ही लिया है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज क्या है S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1, देन Qn इक्वल टू 0 एंड Qn बार इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में बड़े 0 0 का रेस्पेक्टिव रहेगा तो क्या आएगा 1 1 बना रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या है दैट इज नोन एज द रेस अराउंड कंडीशन। क्लियर हुई बात? तो अल्टीमेटली अपन इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को जैसे अपन फोकस करें या इसकी स्टडी करें तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट अपन कंडीशन इसको ऑब्जर्व करते हैं, दो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है एसआर फ्लिप फ्लॉप स्टडी में कि एक तो सेट स्टेट है और दूसरी रीसेट स्टेट है। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि व्हेन अगर सेट टर्मिनल को मैं हाई कर दूं या एक्टिव करूं, अगर अपन सेट टर्मिनल को कंक्लूजन लें अपन इस सारे ऑब्जर्वेशन का एसआर फ्लिप फ्लॉप का, तो जैसे अपन सेट टर्मिनल को एक्टिव करें, सेट टर्मिनल को 1 से कनेक्ट करें, सेट टर्मिनल को हाई से कनेक्ट करें तो आउटपुट क्या आएगा हाई आएगा, ठीक है। आउटपुट एक्चुअली क्या है Qn, आउटपुट क्या है Qn है, इनपुट क्या है SR है, ठीक है। और Q बार तो एक्चुअली क्या है, Q बार तो उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है आउटपुट का, भाई आउटपुट Q है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है Q बार है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए अपन ने दो आउटपुट अपन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, व्हेन सेट टर्मिनल इज एक्टिव, सेट टर्मिनल इज हाई, देन आउटपुट Q इक्वल्स टू हाई, Q इक्वल्स टू 1, ठीक है। बाय द वे दूसरा केस, उस केस में अगर रीसेट टर्मिनल हाई है, रीसेट को हाई लॉजिक दें, रीसेट को 1 से कनेक्ट करें, उस केस में क्या आएगा, रीसेट अगर हाई है उस केस में क्या आएगा
Q इक्वल्स टू 0। यही अपन यहाँ देख रहे हैं, जैसे 0 0 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई कंडीशन में चेंज रहेगा। 0 1 का मतलब क्या है, रीसेट पे अपन ने 1 दिया, ठीक है। तो रीसेट पे अगर अपन हाई लॉजिक कर रहे हैं तो रीसेट के रेस्पेक्टिव कौन सा लॉजिक कनेक्टेड था, क्यू बार वाला, तो क्यू बार वाले पे हाई आएगा, क्यू पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ये रीसेट कंडीशन। ओके, सेट को अपन हाई करते हैं, सेट को 1 से कनेक्ट करते हैं, तो आउटपुट हाई किस पे रहेगा, क्यूएन पे रहेगा, क्यूएन बार पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। दोनों को 1 1 करेंगे तो दोनों में क्या रेस अराउंड कंडीशन आएगी। रेस अराउंड कंडीशन में क्या रहेगा, दोनों आर कंपेयर टू ईच अदर एंड ट्राई टू गेट द हायर पोजीशन और द आउटपुट हाई लॉजिक। अब जैसे इस वाले केस में अपन देखें, एक जो अपना केस कंसीडर करें कंक्लूजन में, when s equals to 0 and r equals to 1, the output or next state will be the 0। सेट टर्मिनल को 0 कर रहे हैं, रीसेट टर्मिनल को हाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपने माइंड में आएगा कि रीसेट को हाई करा है तो कौन सा एक्टिव आएगा आउटपुट में, क्यूएन बार वाला, क्यूएन बार वाला हाई आएगा, क्यूएन बार पे 1 आएगा, और क्यूएन पे अल्टीमेटली अगर क्यूएन बार 1 है तो क्यूएन क्या होगा, 0। तो आउटपुट स्टेट क्यूएन प्लस 1 क्या आएगी, 0 आएगी। whenever the previous state may be 0 और 1, मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर अपन s पे 0 ले रहे हैं तो प्रीवियसली अगर 0 है या 1 है उस पर मैटर नहीं करेगा, नेक्स्ट स्टेट ऑलवेज 0 ही आएगी। इज इट क्लियर। सेट टर्मिनल 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, सेट टर्मिनल 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। इज इट क्लियर। तो इसके रेस्पेक्टिव अपन सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप की स्टडी करना है। अब अपने माइंड में आएगा कि सर ये अपन ये कहते हैं 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है, तो ये कैसे स्टोर कर रहा है। अब ये कैसे स्टोर कर रहा है कि अपन ने सेट और रीसेट टर्मिनल की पोजीशन चेंज करी तो इसकी स्टेट भी चेंज हुई। जैसे अगर फर्स्ट स्टेट में दे रहे थे दोनों को अपन ने 0 0 दिया तो नो चेंज कंडीशन थी, जो पहले प्रीवियस बिट अगर 1 था तो 1 स्टोर रहेगा, 0 था तो 0 स्टोर रहेगा। दूसरे वाले केस में अपन ने क्या करा, सेट को 0 करा, रीसेट को 1 करा, सेट स्टेट आई तो स्टेट अपनी कैसे चेंज हो गई, अगर प्रीवियसली 0 था या 1 था उससे डजंट मैटर, नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा, वो 1 ही आएगा, नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि कौन सी स्टेट है, ये सेट स्टेट है। जब अपन एस पे 1 लें और आर पे 0 लें सेट स्टेट में, अगर अपन सेट को 0 कर रहे हैं, रीसेट को 1 कर रहे हैं, तो आउटपुट स्टेट में क्या आएगा, क्यूएन बार एक्टिव होगा, क्यूएन क्या आएगा, 0 आएगा। इज इट क्लियर। सेट पे 1 है तो आउटपुट 1 है, सेट पे 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा। तो अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं, आउटपुट स्टेट को चेंज कर रहे हैं, वो कभी 0 बन रहा है, कभी 1 बन रहा है, कभी नो चेंज कंडीशन आ रही है, कभी इनडिटरमिनेट कंडीशन आ रही है ना। तो अल्टीमेटली वो बिट को स्टोर ही कर रहा है कि भाई एक सीक्वेंस में या एक टाइम ड्यूरेशन में, जैसे अपन आर और एस पे इनपुट जो दे रहे हैं वो 5-5 सेकंड में दें, कि 5 सेकंड में 0 0 दिया, अगले 5 सेकंड में 1 1 दिया, अगले 5 सेकंड में 1 0 दे दिया, अगले 5 सेकंड में 0 1 दिया, तो 5-5 सेकंड में क्या उसकी स्टेट चेंज होती जा रही है ना। एक 5 सेकंड में वो क्यू की वैल्यू 1 थी, एक 5 सेकंड में क्यू की वैल्यू 0 होगी, एक 5 सेकंड में वो नो चेंज वाली कंडीशन आई, अगले 5 सेकंड में वो 0 इंडिटरमिनेट रेस अराउंड कंडीशन वाली। तो अल्टीमेटली क्या है, ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में इनकी स्टेट चेंज होती रही है, चेंज स्टेट क्या इनकी चेंज होती रही, और बिट को क्या ये स्टोर करता रहा है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में जिस ट्रूथ टेबल में देखें, इस वाले ट्रूथ टेबल में देखें तो आउटपुट क्या है, क्यूएन प्लस 1 है। तो फर्स्ट 5 सेकंड में इसकी कंडीशन क्या थी, 0, नो चेंज थी। नेक्स्ट स्टेज में इन्हें 0 बिट को स्टोर करा, नेक्स्ट वाले बिट में इसने 1 को स्टोर करा, ये 1 को स्टोर करा, और नेक्स्ट वाले में ये इंडिटरमिनेट कंडीशन। तो अल्टीमेटली क्या है, ये बिट को स्टोर कर रहा है 5-5 सेकंड के ड्यूरेशन में। क्लियर है। अब ये जैसे 0 और 1 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 को अपन किस तरह से बता सकते हैं, इस वाली जैसे इसको समझें, जैसे इस पल्स को लें तो इस पल्स में क्या है, ऊपर वाला लॉजिक तो क्या है, ये 1 है, नीचे वाले लॉजिक में क्या है, ये 0 है। तो ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाला जो ड्यूरेशन, इसको 5 सेकंड मान के चलें, तो 5 सेकंड में ये क्या हाई था, अगले 5 सेकंड में ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है, ये किस फॉर्म में आउटपुट देता जाएगा, स्क्वायर वेव फॉर्म में। बात आ रही समझ में, स्क्वायर वेव फॉर्म है। स्क्वायर वेव फॉर्म अगर प्रेजेंट है, अगर लॉजिक 1 है तो हाई आ जाएगा, अगर स्क्वायर वेव फॉर्म ग्राउंड है, नीचे की साइड में जा रही है, तो उस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एसआर फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट द आउटपुट 0 1 1 0,
that is in form of the square waveform. यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, वही सेम कंसेप्ट है, will be generated the square waveform. ठीक है, तो ये इसका ऑपरेशन है. आज केवल ये एसआर फ्लिप फ्लॉप ही अपन स्टडी करते हैं. इसको पढ़ो, तुम इसकी स्टडी करो. ठीक है, और एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के बाद इसमें तुम्हें कोई डाउट्स या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, ये मैं आपको वैसे भी हर क्लास में, हर प्रीवियस क्लास में मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले जो मैंने आपको पीडीएफ बताई हुई है, जो आपको मैंने पीडीएफ बताई हुई है, उन पीडीएफ को क्या करो आप, उन पीडीएफ को सबसे पहले डाउनलोड करो, है ना. और होप सो शायद बच्चों ने, आप लोगों ने वो डाउनलोड कर भी ली होगी. तो जो मैंने पीडीएफ बताई हुई है, सबसे पहले उन पीडीएफ को डाउनलोड करो. और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो फ्लिप फ्लॉप वाला जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, इजी भी है. अगर आप पढ़ोगे, समझोगे और मेरे लेक्चर को स्टडी करोगे तो ये तुम्हारे इजीली समझ में भी आ जाएगा, है ना. डायरेक्टली आप बुक से पढ़ोगे तो ये चीज आपकी समझ में नहीं आएगी. ओके, तो प्रोसेस यही लेना है, तरीका यही लेना है अपने को कि सबसे पहले जो पीडीएफ मैंने आपको बताई हुई है, आरपी जैन की, आर ए गुप्ता की और मॉरिस मेनू जो बताई हुई, उनकी पीडीएफ को डाउनलोड करो. उसमें जो फ्लिप फ्लॉप का चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टडी करो. मैंने जो लेक्चर आपको जो डिलीवर कर रहा हूँ, लेक्चर की स्टडी करो. दूसरा, मैंने जो पीपीटी आपके गूगल क्लासरूम पर डाल रखी है एज ए नोट्स, है ना, वो बता रखी है, वो उन पीपीटी की आप स्टडी कर सकते हो. ठीक है ना, तो उन पीपीटी के रेस्पेक्टिव उस चीज को आप देखते जाओ. और तुम्हें कोई जो डाउट लगता है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा नंबर भी उस पर है गूगल क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे डाल सकते हो. ऑनलाइन में लेक्चर ले रहा हूँ, उसमें भी डिस्कशन कर सकते हो. ये बात जरूर है बेटा कि जो मैंने आपको लेक्चर का टाइम जो दे रखा है, ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि लेक्चर का टाइम कभी वो नहीं हो पाता या कोई डिस्टरबेंस हो जाता है. तो जो भी लेक्चर का टाइम दे रखा है, जैसे 1 बजे का टाइम दे रखा है, तो 1 से लेके 1:05 पे, 1:10 पे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी. जो मैंने गूगल क्लासरूम पे आपको शेड्यूल जो भेज दिया है, उसके रेस्पेक्टिव मैं क्लास 100% लूंगा, है ना. हो सकता है 5-10 मिनट का ऊपर नीचे हो जाए स्टार्ट करने में, पर स्टार्ट क्लास होगी जरूर, है ना. तो आपको 1 बजे जैसे जो टाइम दे रखा है, जैसे आज का 1 बजे का टाइम था, तो आपको 1 बजे ही अपने वहां पे जूम क्लास में, जूम मीटिंग में जाके आपको उसमें अटैच हो जाना है, उसमें जुड़ जाना है. ऐसा नहीं कि बाद में भी अपन 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उसमें अटैच हो रहे हैं और फिर अपन बाद में बीच में क्लास में आ रहे हैं तो वो समझ में भी नहीं आ रहा. तो इसलिए अपना पहले ही टाइम से उसमें, अब जैसे क्लासरूम में जाते हो तो टाइम से बैठे रहते हो ना क्लास में. कई बार टीचर हो जाता है भाई 5-1 मिनट लेट भी हो जाए तो अपन थोड़ी ना उठ के वहां से चले जाते हैं, वहां बैठे रहते हैं. तो इसी तरह से जब 1 बजे का टाइम है तो 1 बजे के टाइम पे आप वहां बैठे रहो, अपनी क्लास ज्वाइन कर लो. 5-1 मिनट में हो सकता है कुछ काम से हो तो 5-10 मिनट में वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी. क्लास होगी जरूर, ऐसा नहीं कि भाई सर नहीं आए तो अपन छोड़ के चले जाओ और फिर 20 मिनट बाद आके अपन जुड़ रहे हैं. तो 20 मिनट बाद जुड़ोगे तो वो चीज समझ में ही नहीं आएगी आप लोगों को. पर कोई बात नहीं, ये जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्ड करा हुआ है ना, इसको मैं कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे अभी अपलोड कर दूंगा विदिन 5 मिनट्स में. और आपको वहां जाना है और इस पहले जो भी लेक्चर मैंने बताया हुआ इसको आप पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, पीपीटी जो मैंने गूगल क्लासरूम पर डाल रखी है उनको पढ़ो. और उसके बाद भी जो भी तुम्हें डिस्कशन आता है, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, है ना. व्हाट्सअप कर दो, है ना. तो अब हो सकता है कि अपन रोज तो क्लासें फिक्स नहीं कर सकते, रोज का टाइम फिक्स नहीं कर सकते क्लास का. कभी कभी टाइम मिलता है, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है. पर ये जरूर है कि मैं जब भी शेड्यूल डालूंगा तो उसके, जब शेड्यूल डाल रहा हूँ तो उसके बीच में कम से कम 4-5 घंटे का अंतर होगा. मतलब जैसे 1 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ तो सुबह 9-10 बजे डाल दूंगा मैं, या 4-5 बजे, 4 बजे, 3 बजे क्लास लूंगा तो मैं 10-11 बजे करीब डाल दूंगा. शेड्यूल डाल दूंगा, वो आपके मेल पे आता है और मेल पे आप इजीली उसको चेक कर सकते हो, है ना. उसमें कोई इशू नहीं है. क्लास होगी रेगुलर, जनरली मैं रेगुलर ही क्लास लूंगा, है ना. तो वो टाइम टू टाइम मैं गूगल क्लासरूम पर डालता रहता हूँ. वो गूगल क्लासरूम का मैसेज सीधा आपके जीमेल पे जाता है और जीमेल को चेक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना. जीमेल तो अपन चेक कर सकते हैं इजीली, ऐसा कोई इशू नहीं है.
5 मिनट लगते हैं जीमेल चेक करने में। तो स्मार्टफोन है तो वैसे ही कोई फास्ट अपन चेक कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तो अपने इसको पढ़ो, इसकी स्टडी करो, और के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो अब ये अपने डिस्कशन करते रहेंगे, चलते रहेंगे, और ये अब जैसे मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ इसके रेस्पेक्टिव एक असाइनमेंट भी लूंगा, ठीक है ना? असाइनमेंट भी लूंगा, असाइनमेंट में वही होगा। और नहीं तो जैसे जो जो बच्चे, जैसे जिन जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड करी है, क्योंकि मेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो ईच एंड एवरी बच्चे की उसमें क्लास में आ जाता है। तो मैं उसमें भी डिस्कशन कर सकता हूँ, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, उसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं, है ना? तो तुम, आप जो भी शेड्यूल में डाल रहा हूँ आपस में इंटरकनेक्टेड तो रहते ही हैं बच्चे, तो आप क्लास जरूर अटेंड करो बेटा, है ना? क्लास में अटेंड करो, और उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई इशू आती है, तो आप मुझे पर्सनली फोन भी कर सकते हो। आप मुझे पर्सनली फोन भी कर सकते हो, और जो भी कोई प्रॉब्लम मुझसे सीधा डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।